Hello everyone. Good evening once again. Namo Namaha. We are going to start with homework part first. So we have already seen the table of Bhanu. We have discussed and we have recited the table of Bhanu. And the homework was you have to write down the table of Manu according to Bhanu, which is Ukarantam Pullingam Nama. So who is ready with the table of Manu? Yes, Josh. Unmute yourself. Namo Namaha, ma'am. Namo Namaha. Can you read the table of Manu? Yes, ma'am. Okay, start. Manuhu, Manu, Manavah, Prathama. Ma'am, I will read that English meaning also. Yeah, sure. First, Manuhu, just read Manu. whole table and then tell me the meaning. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Manuhu, Manu, Manavah. Manum, Manu, Manun. Manuna, Manubhyam, Manubihi. Manave, Manubhyam, Manubhyah. Manoho, Manubhyam, Manubhyah. Manoho, Manvoho, Manunam. Manau, Manvoho, Manushu. He Mano, He Manu, He Manavah. Very good. Perfect. Now tell me to everyone, please check the meaning of table Manu. Yes, start. One Manu, two Manus, many Manus. Two a Manu, two Manus, too many Manus. By or with a Manu, by or with two Manus, by or with many Manus. For a Manu, for two Manus, for many Manus. From a Manu, from two Manus, from many Manus. Of a Manu, of two Manus, of many Manus. In, on, at a Manu, in, on, at two Manus, in, on, at among many Manus. O Manu, O two Manus, O many Manus. Very good. Perfect. Thank you, ma'am. Thank you, Josh. Okay, students. So in this manner, you have to write down more tables regarding this Bhanu, Dhenu, and now I hope you have done the and you have checked it. So in this manner, धेनु का टेबल ओनली टू डिफरेंसेस. सो द्वितीय बहुवचन आप देख सकते हो, इट इज धेनु एंड भानु में भानुन. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Okay. Okay, thank you. Yes, so we are discussing ki you have to observe the dvitiya bahuvachan of dhenu. Dvitiya bahuvachan of dhenu is dhenuhu and the dvitiya bahuvachan of bhanu is bhanun. So now students here, there is a difference. Bhanun न में end हो रहा है and धेनुहु यहाँ पे विसर्ग में एंड हो रहा है बिकॉज इट इज स्त्रीलिंगम. तो वो एक जो फॉर्म है उसको आपको बॉक्स बनाना है या स्टार मार्क कर दो, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए. ऑल्सो तृतीय एकवचनम देखो धेनवा एंड भानु में इट इज भानुना, तो उसको भी स्टार मार्क करना है. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. द्वितीय बहुवचन ऑफ धेनु एंड तृतीय एकवचन ऑफ धेनु इज डिफरेंट. Both the forms are different from Bhanu. Otherwise, no difference in the table. Okay. Now, अभी थर्ड और एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक धेनु में देर आर टू फॉर्म्स. एक है धेनवे, दूसरा धेनवे, धेनु हो, धेनवा. ऐसे एकवचन के टेबल में फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है कि देर आर
2 फॉर्म्स. अभी ये क्या है? सो दे आर ऑप्शनल फॉर्म. उसमें से कोई एक फॉर्म हमें लर्न करना है. अगर आप उसमें से लेफ्ट साइड वाले फॉर्म्स को ऑब्जर्व करोगे, स्टूडेंट्स प्लीज बी अटेंटिव. एकवचनम धेनु का टेबल, फर्स्ट कॉलम धेनु का देखना है हमें. उसमें धेनवे, धेनोहो, धेनोहो, धेनव. चतुर्थी से सप्तमी देखो, धेनवे, धेनोहो, धेनोहो, धेनव. These left side forms are same as भानु. भानवे, धेनवे, भानोहो, धेनोहो, भानोहो, धेनोहो, भानव, धेनवव. एंड राइट साइड में जो फॉर्म है लाइक धेनवई, धेनवाहा, धेनवाहा, धेनवाम, these are extra optional forms. Okay, so no need to by heart it. If you are ready to by heart it, आपको करना है पूरा टेबल बाय हार्ट और कर सकते हो, देन आप बाय हार्ट करो. बट अगर आप एक फॉर्म भी लर्न करोगे लेफ्ट साइड वाला जो कि सिमिलर है भानु के टेबल से, तो भी काफी है. यू हैव टू राइट डाउन ओनली वन फॉर्म इन योर एग्जाम. ओके, so now we have to recite the table of Dhenu. I am reciting it, please be attentive, then you have to again recite it. धेनुः उकारांतम स्त्रीलिंगम नाम. धेनुः, धेनु, धेनवः प्रथमा. धेनुम, धेनु, धेनुः द्वितीया. धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः तृतीया. धेनवे, धेन्वै, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः चतुर्थी. धेनोः, धेन्वाः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः पंचमी. धेनोः, धेन्वाः, धेन्वोः, धेनूनां षष्ठी. धेनौ, धेन्वां, धेन्वोः, धेनुषु सप्तमी. हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः संबोधनम. Okay, so now who is ready to recite this table just by seeing? Yes, Yashvi. Yes, ma'am. Yes, start reading the table of Dhenu. Yes, ma'am. धेनुः, धेनु, धेनवः. धेनुं, धेनु, धेनुः. धेनवा, धेनुभ्यां, धेनुभिः. धेनवे, धेनवै, धेनवै, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः. धेनो, धेनोः, धेन्वाः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः. धेनोः, धेन्वाः, धेन्वोः, धेनूनां. धेनौ, धेन्वां, धेन्वोः, धेनुषु. हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्वः. Okay, very good, Yashvi. Just one Yes. correction. You should read the vibhaktis, Prathama, Dvitiya. Okay? Yes, ma'am. Okay, no problem. Next time onwards, please read the vibhaktis also. Yes, Mrunal. Yes, teacher. धेनुः, Okay. धेनु, धेनवः प्रथमा. धेनुं, धेनु, धेनुः द्वितीया. धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः तृतीया. धेनवे, धेन्वै, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः चतुर्थी. धेनोः, धेन्वोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः पंचमी. धेनोः, धेन्वोः, धेन्वोः, धेनूनां षष्ठी. धेनौ, धेन्वां, धेन्वोः, धेनुषु सप्तमी. हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः संबोधनम्. Okay, very good. Yes, तो जश ने भी विभक्तिज रीड नहीं की थी. स्टूडेंट्स ऑलवेज रीड द विभक्तिज ऑल्सो. क्यों? क्योंकि फिर आपको ही अच्छे से याद रहता है कि कौन सी विभक्ति में क्या क्या फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं. एंड व्हाइल फ्रेमिंग द सेंटेंस आपको वो विभक्ति याद आ जाती है कि रिसीवर के लिए चतुर्थी विभक्ति है तो मुझे ये भानु का फॉर्म यूज करना है. बाय और विथ आ गया तो मुझे भानु ना यूज करना है. ये धीरे धीरे आपको केमिकल क्या कहेंगे हम लोग, जो सब कोऑर्डिनेशन होता है संस्कृत ग्रामर के बारे में, वो धीरे धीरे आपको ही पता चल जाएगा कि मुझे अभी आ रहा है सब कुछ सॉल्व करने के लिए. ओके, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ग्रामर. तो इसीलिए प्लीज ऑलवेज रिसाइट द विभक्तिज आल्सो एट होम. सो वही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. Okay, now we'll move ahead. We have a third table of ukaranta namani, which is madhu. Madhu means shahad, honey, and dhenu means cow. Bhanu means sun. तो अभी ये जो मधु उकारांत वर्ड है, इट इज नपुंसकलिंगम नाम. ऑब्जेक्ट है, एक हनी खाने की चीज है, थिंग है, इसीलिए वो नपुंसकलिंगम है, न्यूटर जेंडर. एंड नो वन विल रिसाइट और नो वन विल कॉल दिस वर्ड नपुंसकलिंग एज नपुंसकलिंगम. कोई भी नपुंसकलिंगम नहीं बोलेगा.
नपुंसकलिंगम. वी आर अ संस्कृत स्टूडेंट्स. ओके, तो प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए. प के ऊपर आप देख सकते हो देयर इज वन अनुस्वार and hence you have to decide Napunsakalingam. Okay, now we'll move ahead. This Madhu table will take little bit of efforts to by heart it because many forms are different than Bhanu. आप देख सकते हो येलो कलर में द डिफरेंशिएटेड पार्ट इज हाईलाइटेड. येलो कलर में जो पार्ट हाईलाइट किया है वो तो डिफरेंट है ही, बट अगर आप एक वचन का पूरा कॉलम ऑब्जर्व करोगे तो एक वचन का पूरा कॉलम जो है वो भानु के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है. आई एम सेइंग द एकवचन कॉलम ऑफ मधु इज नॉट एट ऑल मैचिंग विथ भानु. बहुत डिफरेंट फॉर्म्स है. द्विवचन एंड बहुवचन में ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म्स है, ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट दैट येलो लाइन. ओके, अभी ये जो येलो लाइंस ऐड हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हो एक ही बार आपको वो येलो लाइन रीड करनी है, लाइक मधु, मधुनी, मधुनी. देन आपको कॉपी पेस्ट ही करना है. द्वितीया में भी सेम ही है और संबोधनम में भी सेम ही है. सो कभी भी कोई टेबल आप बाय हार्ट करते हो तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है ये पहले अच्छे से देख लो, ऑब्जर्व इट एंड देन स्टार्ट बाय हार्टिंग इट. तो क्या होगा कि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये भी चालू रहेगा कि अरे हाँ ये सिमिलैरिटीज थी भानु के साथ और ये डिसिमिलर था. तो अकॉर्डिंगली आप जब भी लिखोगे, विजुअल मेमोरीज हमेशा पावरफुल होती है. तो जब भी हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सिमिलैरिटीज को डिफरेंशिएशन को स्टार मार्क करते हैं तो याद रहता है कि यहाँ पे डिफरेंट था. इसीलिए मैंने आपको बोला है द्वितीय और तृतीय धेनु के टेबल में स्टार मार्क करो. तो जब भी आप बार बार रीड करोगे देखते हुए तो आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पे स्टार मार्क था, मतलब कुछ डिफरेंट फॉर्म होने वाला है, सेम एज भानु नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे भी कलर अलग दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. येलो कलर मतलब यहाँ पे नोट करना है कि द फॉर्म्स आर डिफरेंट दैन भानु. ऑल्सो आई एम सेइंग यू दैट एक वचन का पूरा जो कॉलम है वो भानु से बहुत ही डिफरेंट है, तो उसको भी याद रखना, वहां पे स्टार मार्क करके रखो अबव दैट एकवचनम का पूरा कॉलम. ओके, नाउ विल रिसाइड मधु. मधु उकारांतम नपुंसकलिंग नाम हनि. मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा. मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया. मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः तृतीया. मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः चतुर्थी. मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः पंचमी. मधुनः, मधुनोः, मधूनां षष्ठी. मधुनी, मधुनोः, मधुषु सप्तमी. हे मधो, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधनम. सो इफ यू ऑब्जर्व, द्विवचन में जो मधुनी है उसको मैं शॉर्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ मधु, एंड बहुवचन में जो है उसको मैं लॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ मधु, मधु, मधु. ओके, बिकॉज उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग ध आया हुआ है. सो वो भी चीज आपको ऑब्जर्व करनी है. उसके साथ ही आप देख सकते हो द्विवचन में जब मधुनी हम लिखते हैं एट दैट टाइम नी इज दीर्घ. दीर्घ मीन्स लॉन्ग, and when we write in bahuvachan ni becomes short. So actually द्विवचन में हमें याद रखना है it is 1-2, it is a formation 1-2. न को शॉर्ट ध को शॉर्ट लिखना है, न को लॉन्ग लिखना है. एंड बहुवचन में उल्टा करना है, it is 2-1, ध को लॉन्ग लिखना है और नी को शॉर्ट लिखना है. Okay, so now who is ready to recite the table of madhu and with vibhaktis? Yes, Shruti. Yes, ma'am. मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा. मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया. मधुना, मधुभ्यां, मधुभि तृतीया. मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः चतुर्थी. मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः पंचमी. मधुनः, मधुनो, मधुषु, मधुनां षष्ठी. मधुनी, मधुनो, मधुषु सप्तमी. हे मधु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधनम. Very good, perfect, Shruti. Thank you, ma'am. Okay. Next, yes, Arya from Saidham. Yes, miss. Yes, Arya. Madhu, Madhuni, Madhuni Prathama. Madhu, Madhuni, Madhuni Dvitiya. Madhuna, Madhubhyam, Madhubihi Tritiya. Madhune, Madhubhyam, Madhubhyah. Madhunah, Madhunah, Madhunoh, Madhunam. Madhuni, Madhunoh, Madhushu. He Madhu, He Madhuni, He Madhuni Sabodhanam. Okay, very good, Arya.
Yes, next. Yes, Arnav. Arnav. Hello, ma'am. Yes. Start reading Madhu. Yes. मधु मधुनी मधुनी प्रथमा मधु मधुनी मधुनी द्वितीया मधुना मधुभ्याम मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः चतुर्थी मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी हे मधो मधु हे मधुनी संबोधनम. Very good. Very good. Okay. So great students, you are pronouncing the words as it is and perfect. Now थोड़ा exercise को change कर देते हैं. अभी आपको धेनु जैसे तनु वर्ड को रिसाइट करना है बिना लिखे. जस्ट ट्राई करो. धेनु को सामने रखना है एंड तनु को आपको ओरली प्रैक्टिस करना है, रिसाइट करना है. सो यू हैव 2 seconds. थोड़ा प्रैक्टिस कर लो एंड देन हम स्टार्ट करते हैं. देन रेज योर हैंड्स. दोज हु आर रेडी टू रिसाइट तनु same like Dhenu, raise your hand. Yes, Riya. Hello, Riya. Am I audible to you? Yes, yes. Okay, start reciting Tanu, same as Dhenu. हेलो रिया, आवाज आ रही है? हाँ मिस. हाँ, तो रिसाइट करना स्टार्ट करो. तनु. तनुः तनु. सॉरी मिस, सॉरी. तनुः okay. तनवः प्रथमा तनुः द्वितीया तेनवा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया. धेनु नहीं, तनु. तेनवे तनुभ्यः चतुर्थी तनुभ्यः पंचमी तनूनां षष्ठी तनवोः तनुषु सप्तमी हे तेनु. Okay, no problem. I think some network issue. Okay, you have tried well. Anyone else who is ready to recite Tanu? Yes, Harshit. Yes, miss. Good afternoon. Good afternoon, Harshit. Can I start? Yes. Tanu. तनुनी प्रथमा तनु. Wait. हर्षित, तनु कौन से टेबल के नीचे है बेटा? धेनु या मधु? यस हर्षित. हेलो. हाँ हर्षित, तनु एक लड़की का नाम होता है ना? इट इज फेमिनाइन वर्ड, राइट? यस. हाँ, तो यू हैव टू टेक अ टेबल एज अ रेफरेंस. धेनु, नॉट मधु. यू आर रिसाइटिंग लाइक मधु. ओके. हाँ, मधु एक लड़की का नाम नहीं है बेटा. मधु मतलब शहद, हनी. तो वो थिंग्स के लिए यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए. अभी हमें यूज करना है द फेमिनाइन टेबल धेनु. ओके. या स्टार्ट नाउ. मनुः तनु. तेनवः प्रथमा. नो, तेनु नहीं, तनु. आपको धे के जगह पे, सब जगह पे त इमेजिन करना है. ट्राई करो एक बार.
तनु बेटा, हाँ तनुः तनु तनवः प्रथमा तनुं ओके तनुः द्वितीया तनवा तनुभ्यां तनुभिः तृतीया तनवै तनुभ्यां तनुभ्यः चतुर्थी तनोः तनवः तनुभ्यां तनुभ्यः पंचमी तनोः तनवः तनूनां षष्ठी तनौ तनवां तनवोः तनेषु सप्तमी हे तनवः संबोधनम। ओके ओके गुड गुड। यस, तो जैसे कि आपने देखा जश ने बहुत अच्छे से एंड में कवर कर लिया एंड उसने धेनु को रेफर करके तनु बहुत अच्छे से रिसाइट किया। लिटिल बिट थोड़े थोड़े मिस्टेक्स थे, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम लोग, लिखने के बाद और हम लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा वर्ड को चेंज करते हैं। विल टेक हनु। तनु का मीनिंग था बॉडी, नाउ हनु का मीनिंग है चिन। सो हु इज रेडी फॉर हनु? Yeah, sorry, I think it was Harshit, not Jash. No problem. Yes, next, who is ready for Hanu? धेनु के टेबल को ही रेफर करके हमें हनु रिसाइट करना है। Yes, श्रुति? Yes, ma'am. एक मिनट श्रुति, नेक्स्ट टेबल पार्थ रिसाइट करेगा। पार्थ बी रेडी, ओके? यस, स्टार्ट श्रुति। हनु हनवः प्रथमा हनुः द्वितीया हन्वा हनुभ्यां हनुभिः तृतीया हन्वे हनुभ्यां हनुभ्यः चतुर्थी हनोः हनुभ्यां हनुभ्यः पंचमी हनोः हनूनां षष्ठी हनौ हनुषु सप्तमी हे हनु हे हनवः संबोधनम्। वाओ, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू मिस। यस, तो जैसे कि आपने देखा श्रुति ने एकदम परफेक्टली उसने क्या किया, लेफ्ट साइड के जो फॉर्म्स है वही चॉइस किए और अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म्स ओनली उसने टेबल हनु का रिसाइट किया। दिस इज आल्सो अ करेक्ट मेथड, ओके? इसमें हमारे मिस्टेक्स कम होते हैं। व्हेन वी चॉइस ओनली वन फॉर्म फ्रॉम दैट ऑप्शनल फॉर्म्स, तो हमारे मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। वेरी गुड। ओके, नाउ हु इज, यस, पार्थ को हम चांस देने वाले। पार्थ, आर यू रेडी? Yes, Parth. पार्थ, आपको अनम्यूट किया है मैंने। Which table do you want to recite, Parth? Hello. Yes, teacher. Any. Do you want to recite Tanu or Hanu? Any, you will tell that I will. Okay. Okay, then start reciting Tanu. Same as Tanu. Dhenu. Yes. Okay. Tanu, no teacher. Yes, yes. तनु प्रथमा तनुः द्वितीया तन्वा तनुभ्यां तनुभिः तृतीया तनुभ्यां तनुभ्यः चतुर्थी तनवाः तनभ्यां तनुभ्यः पंचमी तनवोः तनूनां षष्ठी तनवां तनोः तनुषु सप्तमी हे तनु
हे तनवः संबोधनम. Very good, very good. Thank you so much, Par. Can I Okay, unmute? students. Mute. Yes, mute कर दो. Yes, students. So now we'll move ahead and we'll practice मधु का table. मधु के लिए सबसे पहला table है वस्तु. वस्तु. So quickly raise your hand for vastu. Referring the table of Madhu, you have to recite vastu. Yes, Arman. Hello, Miss. Yes, Arman. Am I Start audible? Am I Yes, audible? yes, you're audible. वस्तु उकारांत नपुंसकलिंगम नाम. वस्तु वस्तूनि वस्तूनि प्रथमा. वस्तु वस्तूनि वस्तूनि द्वितीया. वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः तृतीया. वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः चतुर्थी. वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः पंचमी. वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां षष्ठी. वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुनुषु सप्तमी. हे वस्तो हे वस्तूनि हे वस्तूनि संबोधनम. Very good, very good. Thank you. Students, I would like to appreciate Arman because he has started the table by reading the title of the table. That is very good. Okay, when you read the title of table, it is very easy to answer the question in exam because अभी आपको आगे समझेगा कि कैसे कैसे questions आ रहे हैं. तो टेबल उकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, पुल्लिंगम है, नपुंसकलिंगम है, ये भी बाय हार्ट हो जाता है when you recite the title also. Very good, Arman. Keep it up. Okay, students. Next question is the table of Ambu. थोड़ा डिफिकल्ट है. अंबु मीन्स वाटर. वस्तु तो आपको पता है, वस्तु मीन्स थिंग. हिंदी में भी हम सेम वर्ड यूज करते हैं. अंबु इज वाटर. सेम लाइक मधु, यू हैव टू रिसाइट अंबु. यस, तन्वी. Hello, Miss. हेलो तन्वी. Yes, Miss. Can I start? यस, स्टार्ट अंबु. Ambu उकारांतम नपुंसकलिंगम नाम. अम्बु अम्बुनि अम्बूनि प्रथमा. अम्बु अम्बुनि अम्बूनि द्वितीया. अम्बुना अम्बुभ्याम अम्बुभिः तृतीया. अम्बुने अम्बुभ्याम अम्बुभ्यः चतुर्थी. अम्बुनः अम्बुभ्याम अम्बुभ्यः पंचमी. अम्बुनः अम्बुनोः अम्बूनां षष्ठी. अम्बुनि अम्बुनोः अम्बुषु सप्तमी. हे अम्बो हे अम्बु हे अम्बुनि हे अम्बूनि संबोधनम. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू मिस. एकदम परफेक्ट रिसाइट किया है तन्वी ने. नो मिस्टेक्स एट ऑल. Okay, now we'll move ahead. ये जो जिज्ञासा पत्रम है, question number 1 and 2, it will be your homework and we'll surely discuss every question in the next lecture. But first I want you all to try at least try करो, समझो questions को and try to write down the words. अभी इसमें करना क्या है वो मैं explain कर देती हूँ. जिज्ञासा पत्रम question number 1 जो है, please listen it carefully. It is yogya rupam yojayata. So some sentences given there and also there is a helping word in the bracket. That helping word indicates you कि वो उकारांत है एंड कौन से लिंग का है या फिर कौन से टेबल के थ्रू उसको फॉलो करना है, हमें रेफर करना है. तो जैसे कि टेबल पशु है. अभी पशु का टेबल कैसे है? भानु जैसे, बिकॉज भानु के नीचे आप पर्पल कलर में देख सकते हो, वहां पे पशु का भी इंडिकेशन दिया हुआ है. सो पशु के टेबल के लिए हमें भानु का टेबल रेफर करना है. अभी यहाँ पे कौन सी विभक्ति यूज करनी है, दिस इज अ टास्क. महादेवः डैश पतिः. पति मतलब आपको पता है हस्बैंड, बट यहाँ पे पति का मीनिंग हमें लेना है पालन करता, प्रोटेक्टर. सो महादेव इज प्रोटेक्टर ऑफ पशु. सब प्राणियों का रक्षण करता है, प्रोटेक्टर है भगवान शिव. ओके तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमें ऑफ पशु. अभी मैंने जैसे कि आपको सब हर एक वर्ड का मीनिंग लिख के दिया है, तो ऑफ कौन से विभक्ति में आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है. और अभी एक ही पशु का वो पालन करता है क्या? नहीं, मेनी पशुज. मेनी पशुज मतलब मेनी एनिमल्स. तो इसीलिए हमें बहुवचन यूज करना पड़ेगा.
तो व्हाट इज द षष्ठी बहुवचन ऑफ पशु? यस श्रुति, करेक्ट आंसर. यस सौजन्य, करेक्ट. हमें बहुवचन यूज करना है, बट व्हाट इज द बहुवचन ऑफ वर्ड पशु? षष्ठी बहुवचन. वेरी गुड. याशिका, अरमान, श्रुति, करेक्ट आंसर. आर्या, करेक्ट आंसर. यस राइट. सो द आंसर इज पशु नाम. तो आपको वही आंसर वहां पे लिखना है. महादेवः पशु नाम पतिः. पशु नाम का मीनिंग क्या हो गया? ऑफ एनिमल्स. सो भगवान शिव इज प्रोटेक्टर ऑफ ऑल एनिमल्स. अभी ऐसे ही आपको समझ के हर एक सेंटेंस सॉल्व करना है. तो आपको आंसर्स तो किधर से भी मिल जाएंगे, नोट से मिल जाएंगे, एनी मास्टर की, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फ्रॉम एनीवेयर. बट नेक्स्ट टाइम आई वांट अ एक्सप्लेनेशन why you have written that particular विभक्ति. मतलब तृतीया ही क्यों लिखी, चतुर्थी क्यों लिखी, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. दिस इज द मेन टास्क. आंसर्स लिखना ये टास्क नहीं है. आंसर्स 10 के 10 भी परफेक्ट आ सकते हैं, बट व्हाई यू हैव रिटन इट, उसका रीजन परफेक्ट आना चाहिए. तृतीया विभक्ति ही क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृतीया विभक्ति, व्हाई षष्ठी, व्हाई सप्तमी, ये आपको नेक्स्ट टाइम मुझे बताना है. एंड हेंस प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन 2 इज वेरी सिंपल. इसमें सिर्फ हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो शंभु का शंभुना इज तृतीया विभक्ति का फॉर्म. सो वैसे ही शिशु का तृतीया विभक्ति का फॉर्म हो जाएगा. क्विकली टेल मी. यस आर्या, करेक्ट आंसर. श्रुति, करेक्ट आंसर. Yes, by observing Shambhuna, we know the answer is Shishuna. Perfect, students. So in this manner, you have to solve the second question. Second question is absolutely easy question. वो आपको MCQ type के एग्जाम में आने वाला है. Okay, तो मे बी आपका यूनिट टेस्ट 2 या फिर आपका सेमेस्टर, उसमें जो MCQs रहेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 1 pair will be given, second pair आपको कंप्लीट करनी है. बट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, it is a task, it is a understanding part. So please वो होमवर्क में कंप्लीट करना है. नाउ विल क्विकली मूव अहेड एंड विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी हैव अ नेक्स्ट टेबल ऑफ पिता. ओके, बट जिसका टाइटल दिया हुआ है पितृ ऋकारांत पुल्लिंगम नाम. पितृ ऋकारांत पुल्लिंगम नाम. पुल्लिंगम मैस्कुलाइन है. ऋकारांत मतलब रू में एंड होने वाला. कौन सा रू? ऋषि वाला रू. ओके, तो आप देख सकते हो पितृ वर्ड के नीचे एक छोटा सा कर्व बनाया हुआ है. जब हम संधि सीख रहे थे तभी भी मैंने बोला था एक कर्व मतलब शॉर्ट रू एंड 2 कर्व्स मतलब लॉन्ग रू. तो यहाँ पे भी ह्रस्व एंड दीर्घ रू हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं. तो दिस इज द टेबल ऑफ पितृ, जिसका ओरिजिनल एक प्रथमा विभक्ति का फॉर्म है पिता, जो हम बहुत बार यूज करते हैं. द मीनिंग इज फादर, बट द ओरिजिनल रूट वर्ड इज पितृ. वैसे ही माता का भी है. माता तो हम बहुत बार यूज करते हैं फॉर मदर, बट द ओरिजिनल रूट वर्ड इज मातृ, ऋकारांत वर्ड. ओके, ये संस्कृत का थोड़ा अलग पार्ट है. ये बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में हमें दिखाई नहीं देता है. ऋकारांत वर्ड्स बहुत कम होते हैं. ओके, एंड संस्कृत में भी गिने चुने ऋकारांत वर्ड्स है. बेसिकली ऑल द ऋकारांत वर्ड्स आर ऑफ रिलेटिव्स. रिलेटिव्स के जो भी नाम है वो ऋकारांत वर्ड्स में दिए हुए हैं. जैसे कि आप ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, वर्ड दिया हुआ है पितृ मीन्स जनकः मतलब फादर, भ्रातृ मीन्स सहोदरः मतलब ब्रदर. देन वहां पे दिया हुआ है भ्रातृ. भ्रातृ मीन्स भाई, ब्रदर. आफ्टर दैट वी हैव जामातृ. जामातृ इज सन इन लॉ एंड सो ऑन. बहुत सारे वर्ड्स है. जैसे और एक है मातृ, जो आपको पहले से पता है, माता. देन दुहितृ इज कन्या. स्वश्रु इज also for feminine word. So in this manner there are many words of rukaranta related to relatives, natevaik. Okay, now we'll move ahead. We'll recite the first table of pitru. Pitru rukarantam pullinga nama, meaning father. Pita pitarau pitarah prathama. Pitaram pitarau pitrun dvitiya. Pitra pitrubhyam pitrubhi tritiya. पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः चतुर्थी. पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पंचमी. पितुः पित्रोः पितॄणाम षष्ठी. पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी. हे पितर, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधनम. सेम फॉर माता, ओनली वन डिफरेंट फॉर्म इज देयर फॉर माता, दैट इज मातृहु. आप ऑब्जर्व कर सकते हो मातृहु पिंक कलर में लिखा हुआ है एंड डबल रूकार है वहां पे. I will rotate the screen
and I will zoom it. Now you can observe it कि मातृ जो पिंक कलर में लिखा हुआ एक फॉर्म है मातृहु, उसमें 2 कर्व्स है, तो वो एक डिफरेंट फॉर्म है फ्रॉम पितृस टेबल. इन द्वितीया बहुवचन इट वाज पितृन, बट यहाँ पे फॉर फेमिनाइन इट इज मातृहु. सेम भानु के जैसे ही है स्टूडेंट्स. भानु में भी आपने देखा था भानुन एंड धेनु में धेनुहु विसर्ग आ गया था. तो फेमिनाइन द्वितीया बहुवचन में हमेशा विसर्ग होता है और मैस्कुलाइन द्वितीया बहुवचन में हमेशा न आता है. ओके तो अभी माता का टेबल भी रिसाइड करते हैं. अगर आपने पिता का टेबल लर्न कर लिया तो एग्जैक्टली सेम माता का टेबल है, सिर्फ पी के जगह पे माँ ऐड करना है. ओके पी लेटर के जगह पे माँ लेटर ऐड करना है. माता का टेबल रिसाइड करते हैं. मातृ ऋकारांतम स्त्रीलिंगम नाम. माता मातरौ मातरः प्रथमा. मातरम मातरौ मातृः द्वितीया. मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया. मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी. मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी. मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी. मातरि मात्रोः मातृषु सप्तमी. हे मातर हे मातः हे मातरौ हे मातरः संबोधनम. ओके यस. सो हु इज रेडी टू रीड द टेबल्स? पहले पिता का टेबल रीड करना है, पितृ विथ टाइटल. Others, please participate. Same students are participating again and again. Aryan, Aryan Bhagat, unmute yourself. Yes, Arnav. Arnav? Hello, ma'am. Yes, start reading Pita, Pitru table. Yes, ma'am. अप्रकारः पितृ ऋकारान्त पुल्लिंगम नाम. पिता पितरौ पितरः प्रथमा. पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया. पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया. पितरे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी. पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी. पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी. पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी. हे पितर पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधनम. Okay, very good, Arnav. Now next table of Mata. I mean Matru table. The word Matru. Yes, Saujanya. मातृऋकारान्तं स्त्रीलिङ्गं नाम. माता मात्रौ मात्रः प्रथमा. मात्रं मात्रौ मातुः द्वितीया. मात्रा मातृभ्यं मातृभिः तृतीया. मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी. मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी. मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी. मातरि मात्रोः मातृषु सप्तमी. हे मात्रः हे मात्रौ हे मात्रः संबोधनम. Okay, very good. Okay, students, so in this manner you have to recite the table of Pitru and Matru, which is again same tables. एक table learn कर लोगे तो दूसरा उसके ऊपर free है. Now we'll move ahead and we have to focus on next table. But before that, here we have one Nibandham Purayata. वो question हमें solve करना है. Nibandham Purayata. Ganeshasya Kutumbam. Okay, this is a family of Lord Ganesha. There are only 5 lines regarding the family and हमारा निबंध ready हो जाएगा. गणेशस्य कुटुंबम, गणपति जी का जो फैमिली है उसके बारे में छोटा सा निबंध रेडी हो जाएगा. बट फॉर कंप्लीटिंग दैट निबंध वी शुड नो द फॉर्म्स ऑफ ऋकारांत वर्ड्स. तो जैसे आपने अभी टेबल रिसाइड किया वैसे ही ये जो वर्ड्स है उसके आपके फॉर्म्स बनने चाहिए. तो फर्स्ट है शंकरः गणेशस्य पितृ.
शंकर इज फादर ऑफ गणेश, ओनली फादर, फादर वन फादर, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड पिता। वेरी गुड, प्रथमा एक वचन का फॉर्म यूज करेंगे। सो हमारा आंसर होगा यस, तन्वी, अरमान, श्रुति, करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर होगा पिता। सो शंकरः गणेशस्य पिता। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है पार्वती गणेशस्य डैश। पार्वती गणेशस्य डैश, क्या आंसर हो जाएगा? क्विकली टेल मी। सेम एज पिता, इट इज माता। ओनली पार्वती इज मदर ऑफ गणेशा। सो मदर, अ सिंगल मदर, उसके लिए वर्ड क्या है? माता। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन। कार्तिकेय गणेशस्य डैश, भ्रातृ मीन्स ब्रदर, तो क्या आंसर हो जाएगा? कार्तिकेय गणेश का भाई है, ओनली भाई, अ सिंगल एक वचन। सो अगेन प्रथमा जैसा फॉर्म हो जाएगा। वेरी गुड, यू आर आंसरिंग परफेक्ट। भ्राता, सी कितना सिंपल है, कार्तिकेय गणेशस्य भ्राता। ओके आगे चलते हैं। डैश पार्वत्याः आदेशम एतौ डैश पालयतः, दो वर्ड से, पहला है मातृ, दूसरा है भ्रातृ। पार्वत्याः आदेशम मतलब द ऑर्डर ऑफ पार्वती, एतौ मतलब दीज टू ब्रदर्स, पालयतः पालन करते हैं। माता पार्वती का जो आदेश है वो ये दोनों भी जो ब्रदर्स है वो फॉलो करते हैं, ऐसा हमें लिखना है। सो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ माता, ऑफ माता के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑफ के लिए विच विभक्ति? पहले टेल मी। यस यू आर आंसरिंग करेक्टली, बट विच विभक्ति? तीर्थ, श्रुति, अरमान, which vibhakti you are using? Answer is correct. Yes Riya, correct. The answer is षष्ठी विभक्ति you are using for of. तो षष्ठी विभक्ति और एक ही माता है, माता पार्वती, तो एक वचन यूज करेंगे। Then your answer is absolutely correct students. The answer is मातुः. So मातुः पार्वत्याः आदेशम एतौ डैश पालयतः। एतौ है तो एतव इंडिकेट समथिंग। एतौ क्या इंडिकेट करता है? ड्यूअल फॉर्म। तो भ्रातृ वर्ड का ड्यूअल प्रथमा क्या होगा? पिता पितरौ, तो भ्राता भ्रातरौ, तो हमारा आंसर होगा भ्रातरौ पालयतः। सो मातुः पार्वत्याः आदेशम एतौ भ्रातरौ पालयतः। आर यू गेटिंग मी? भ्रातरौ, व्हाई ड्यूअल फॉर्म? बिकॉज टू पर्सन्स आर देयर। ओके आगे चलते हैं। मातामहस्य हिमालयस्य एतौ आदर्शौ डैश, नप्तृ। आपको आदर्श वर्ड जो है वो कुछ इंडिकेट कर रहा है। अगेन इट इज अ ड्यूअल फॉर्म। सो नप्तृ का भी हमारा जैसे यस भातरऊ किया वैसे ही हमें करना है नप्तारऊ। बट दिस टाइम स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है नप्तारऊ, इट इज अ इरेगुलर फॉर्म एंड इसीलिए नप्तरऊ नहीं होगा, इट इज नप्तारऊ, द्विवचन नप्तारऊ। इट इज अ irregular form. Some forms are like this. यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रथमा, कर्तारम कर्तारौ कर्तृन द्वितीया। दिस इज अपने आ प्रकार। पहले हमने सीखा था अ प्रकार जिसमें भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः प्रथमा होता है एंड कुछ जो वर्ड्स है उसमें कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्रथमा है, म्हणजे मतलब एक आ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ओके तो वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है नप्तारौ। अभी ये वर्ड्स कौन कौन से है ऐसा अगर आपके मन में है तो ये वर्ड्स जो है वो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आ प्रकार वर्ड्स कर्तृ हर्तृ नेतृ रक्षितृ एंड श्रोतृ। कर्तृ मतलब सब्जेक्ट कर्ता, हर्तृ मतलब हरण करने वाला मारने वाला, नेतृ मतलब नेता, रक्षितृ मतलब रक्षण करने वाला। नेता पता है आपको? यस लीडर करेक्ट। रक्षितृ प्रोटेक्टर एंड श्रोतृ मतलब सुनने वाला, श्रोता ऑडियंस। ओके तो कर्ता हर्ता नेता रक्षिता एंड श्रोता ऐसे फॉर्म्स यहाँ पे हुए। ये वर्ड्स का आ प्रकार अलग थोड़े इरेगुलर वर्ड्स है जिसमें उनका ड्यूअल फॉर्म जो है उसमें एक अ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। उसका एक छोटा सा टेबल यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है।
कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्तृन। और ये तीन ही विभक्तिज क्यों दी है प्रथमा द्वितीय संबोधन? बिकॉज यही विभक्तिज में चेंज होता है, अदरवाइज ईच एंड एवरी फॉर्म इज सेम एज पितृ। पितृ का टेबल सब जगह पे सेम है, बट सिर्फ ये कुछ ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया है वो चेंजेस होते हैं ओनली इन दीज वर्ड्स ऑफ आ प्रकार। ये जो आ प्रकार के वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं उसमें सिर्फ वो ब्लू कलर के चेंजेस होते हैं। क्लियर? ओके, किसी को डाउट है अभी इसमें? टोटल हमने आज 4 टेबल्स देखे हैं, न्यू 4 टेबल्स, दैट इज धेनु, मधु, पितृ एंड मातृ। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हाउ टू रिसाइट इट, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चंस जो हम होमवर्क में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकते हैं। एंड सेकंड हमारा एकदम फेमस क्वेश्चन हमें पता है, दैट इज तालिकाम पूरयत। तालिकाम पूरयत, तालिकाम पूरयत मतलब मधु डैश डैश प्रथमा। सो मधु दिया हुआ है तो आपको पता है प्रथमा विभक्ति के और 2 फॉर्म्स जो है द्विवचन एंड बहुवचन के, वो आपको कंप्लीट करने हैं। सो एनी फॉर्म, एनी वन फॉर्म फ्रॉम द विभक्ति विल बी गिवन, अदर 2 फॉर्म्स यू हैव टू कंप्लीट इट। उसको कहते हैं तालिकाम पूरयत। ओके स्टूडेंट्स, एक लास्ट आपके लिए नोटिस है that on page number 23 there is question number 3 talikam purayata. This is different question, it has been reduced or skipped from your syllabus, तो इसको डिलीट कर दो, साइड में एक छोटा सा क्रॉस मार्क बना दो। ये जो तालिकाम पूरयत है, प्रातिपदिकम, अंतः, लिंगम, विभक्ति, वचनम, रिकॉग्नाइज द फॉर्म, ये पैटर्न अभी सिलेबस से और पेपर पैटर्न से निकाल दिया गया है। सो जस्ट मेक अ क्रॉस मार्क देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन विल डू द टेबल ऑफ सर्वनाम, इदम एंड भवत सर्वनाम। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एंड पुनर्मिलामः। अभी 2-3 लेक्चर हम लोग ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स में ही काम करने वाले हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग पोएम्स विद्यार्थमाला एंड वीरवनिता विश्वला देखेंगे। यस, सो बाय एवरीवन एंड पुनर्मिलामः।